Hello students, English medium, standard 10th, subject social science, lesson 7, preservation of our heritage। तो यहाँ पे जो है हमें इस लेसन में हमारी हेरिटेज को प्रिजर्वेशन करना, किस तरह से करना, क्यों करना, इसके बारे में बताया है। जैसे कि लास्ट सभी लेसन में हमने जाना कि हमारी हेरिटेज कौन कौन सी है, नेचुरल हेरिटेज क्या है, कल्चरल हेरिटेज क्या है। तो ये सब हमारी हेरिटेज है, लेकिन इसे प्रिजर्व क्यों करना, किस तरह से करना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हम इस लेसन में अब यहाँ पे सीखेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। India has a unique place in the world. There has been a remarkable contribution in India in the field of the knowledge, science, religion, cultural and art. India has a rich and the inimitable heritage. Our heritage shown and the imperial dignity of the ancient India. That is why we should be committed towards the preservation and the conservation of our heritage, which is the utmost demand of the present time. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया जो है वो यह वर्ल्ड में एक जो है यूनिक प्लेस रखता है। यहाँ पे जो है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन जो प्लेसेस है, कई सारे जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, जबकि नॉलेज के फील्ड में, साइंस, रिलीजन, कल्चरल, आर्ट वगैरह इन सब के फील्ड में जो है यहाँ पे इंडिया का जो है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस रहा हुआ है। और हमारा इंडिया जो ये रिच एंड इनिमिटेबल हेरिटेज है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में जो है काफ़ी तरह की जो है यहाँ पे हेरिटेज वगैरह है, इसे अब प्रिजर्व करना जो है हमारे प्रेजेंट की जो एक डिमांड बन गई है। तो अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द मल्टीफेरियस ऑफ विच द ब्रिंग ग्लोरी ऑफ टू द नेशंस। कल्चरल हेरिटेज accommodates sculptures, architectures, literature, various art and the natural heritage. Natural and the man-made factors and are adversely affecting our heritage. Hence, its preservation is required. Our heritage is the glorifies the people of our country, so they respect our heritage by the associating with their own identity. Therefore, it is necessary to develop the positive attitudes towards the management. We should preserve the vanishing arts of the architecture so that the upcoming the generations can be inspired by the works done by the ancestors. And as we are not much aware about the preservation of our heritage, and our heritage is the chiefly responsible for the degradation, and therefore it has become the necessary to preserve our heritage. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे इंडियन हेरिटेज जो है यहाँ पे वर्ल्ड में जो है ग्लोरी जो है उसे फाउंड हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे इंडिया का जो यहाँ पे हेरिटेज है वह मल्टीफेरियस है। इसमें जो है स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स एंड द लिटरेचर, वेरियस आर्ट्स ऑफ द नेचुरल हेरिटेज सबको इंक्लूड किया गया है। जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो ह्यूमंस वगैरह जो एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ की जो हेरिटेज है उससे जो है नुकसान हो रहा है। तो अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वे जो है अपनी हेरिटेज की वगैरह से जो है आउट ऑफ द इंडिया पहचाने जाते हैं। वर्ल्ड में जो है वे अपने हेरिटेज की वगैरह से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें हमारी हेरिटेज की जो है यहाँ पे इसको संभालना, इसका प्रिजर्वेशन करना जो है यह कंपलसरी हो गया है एंड यह जो है नेसेसरी है। नेक्स्ट, necessity of preservation of cultural heritage. Our heritage is the identity of the nation. The country which ignores it does not have any features as the heritage of our guide. The errors we have committed in the past can be rectified in the present, and we can properly plan for the future. Heritage act as a guide to the decide and the directions of our development. Heritage is the necessary for the transmission of new consciousness and the across of the country. It is necessary to bring the awareness among the people regarding the damage done to the places of the cultural and natural heritage. Not only the government but also the common people should play their vital role for the protections of our heritage. As the heritage is considered as the ideal for the people, it is necessary to the cease of the degradation, and the greater damage has been done to our heritage because of the invasion of the foreign tribes and our unawareness. So it is a moral duty to the government as well as the common people to conserve
प्रिजर्व आवर हेरिटेज। यहाँ पे हमें बताया है कि हेरिटेज जो है वह नेशंस की आइडेंटिटी होती है और विदाउट हेरिटेज के जो है हमारे यहाँ पे जो है कोई फ्यूचर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बताया है कि लोगों ने जो है कल्चरल हेरिटेज को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया है उसे जो है अब कंजर्व और प्रिजर्व करना जो है काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी नेसेसरी हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट ही नहीं, हमारी जो हेरिटेज है उसे जो है कंजर्व करने, प्रिजर्व करने के लिए जो है केवल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कॉमन पब्लिक जो है उसे भी अपना रोल जो है उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए कि हमारी हेरिटेज को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है सभी लोगों में यहाँ पे अवेयरनेस लानी चाहिए और सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि हमारी जो हेरिटेज है उसे हमें किस तरह से प्रिजर्व करना है। तो यह जो है अभी ज़रूरी हो गया है जिससे कि जो है आने वाली भावी पीढ़ी को जो है यहाँ पे हमारी कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानकारी मिल सके। Tourism industry and our heritage. Various sites of natural and the cultural heritage of India have been accommodated in the list of the World Heritage by UNESCO. Many people come to visit, the explore and to research on our heritage from India and other countries. This boosts our tourism and transportation industry. Along with the economic benefit to the concerned states, tourism industry provides the appropriate opportunity and the proper platform to showcase our multifarious cultural and arts and the traditions in the front of the world. Apart from the tourism also provides the employment to the local people, and this keeps the vanishing art and traditions alive. Nowadays the tourism as a subject has been added in the field of the education, which is the eventually programs tourism's guide as an the independent business. India earns foreign currency from the foreigners visitors. Introducing a heritage cultural is the enlightens and the talent of our country, and the international level facilities like the metal road and the railways, water, communication, etc. are the developed around the sites of heritage. Tourism encourages activities like the photography, horse riding, and the boating, etc. Similarly, the provide employment of the street hawkers and the varied cultural indigenous art, and their features have not a proper platform for the development. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यूनेस्को ने जो है इंडिया की कई प्लेसेस को जो है कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज की तरह जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लोग जो है हमारी हेरिटेज के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए जो है यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यानी टूरिज़्म को जो है प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिकली प्रॉफिट होता है। एंड यहाँ पे जो है लोगों के सामने जो है यहाँ पे हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, जो नेचुरल हेरिटेज है, उसे हम जो है यहाँ पे शो ऑफ कर सकते हैं, उसे हम दिखा सकते हैं कि हमारी हेरिटेज जो है यह इस तरह से है, एंड उसे अभी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को प्रॉफिट हुआ है, टूरिज़्म को प्रॉफिट हुआ है, एंड जो यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। एंड यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वे लोग जो है यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट्स होता है, उनको जो है यहाँ पे रोज़गार वगैरह प्राप्त होता है, एंड वहाँ पे जो है उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमें मिलता है कि जिसकी वजह से हमें हमारी हेरिटेज को जो है यहाँ पे लोगों के सामने वर्ल्ड में जो है प्रेजेंट कर सके। एंड यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज होती है वहाँ पे जो है रेलवे, वाटर, कम्युनिकेशन, रोड वगैरह की जो है यहाँ पे फैसिलिटी की जाती है। नेक्स्ट, preservation of our heritage and the measures to conserve it. Efforts made for the preservation and conserve of the heritage given below. Indian government has constituted the Indian Board of Wildlife is in 1952 to protect our wildlife. It is facilitated with the material for the conservation of wildlife. It suggests that the government for the development of national park, bird sanctuary, and the geological gardens, along with the task and the creating the awareness of the protection of वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व किस तरह से करें। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो एक्ट जो है उन्हें प्रेजेंट किया है। एंड यहाँ पे बताया है कि जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ जो जानवर्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो है उन्हें हम यहाँ पे कंजर्व कर सकें। एंड यहाँ पे बर्ड्स वगैरह के लिए जो है नेशनल पार्क वगैरह, जियोलॉजिकल गार्डन्स वगैरह जो है उसकी फैसिलिटी हो, जिससे कि जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बना रहे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
enacted in 1972 gave a firm status of the national parks and the sanctuaries and the bioreserves. New national parks, wildlife sanctuaries and the bioreserve has been established. The law of our country for the preservation of our heritage have a, have a wildlife perspective, and the street laws have been the farm to stop the destruction of the vanishing vegetations and वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड किया गया, जिसमें कि जो है नेशनल पार्क्स वगैरह जो है, सेंचुरीज वगैरह एंड बायो रिजर्व्स वगैरह जो उन्हें एस्टाब्लिश किया गया था। एंड यहाँ पे जो है और भी कई सारे लॉज जो है उन्हें यहाँ पे एक्टेड किया गया है। और उसके बाद में बताया कि यहाँ पे जो होते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह, वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उन्हें यहाँ पे जो है चराने वगैरह के लिए, वेनिशिंग्स वगैरह के लिए एंड वेजिटेशंस वगैरह के लिए नहीं ले जाया जाता, उन पर जो है एक्ट लगाया जाता है। Apart from the government, here are the several societies and organizations which have been actively taking up the task of protection of the wildlife and the environment. The Bombay Natural History Society is the oldest one of its kind and was established in 1883. Presently, Gir Foundation, Natural Club, etc. institutions are doing noble work of the environmental preservation, realizing the importance of the preservation of our heritage. Constitution's farmers made the mandatory that it should be the included in our constitutions. तो यहाँ पे हमें बताया है कि गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे जो जैसे गायब हो रहे हैं जो पशु पक्षी प्राणी पौधे वगैरह जो गायब हो रहे, वैनिश हो रहे हैं, उनकी जो है यहाँ पे उनको बनाए रखने के लिए जो कई तरह से लॉ वगैरह जो है एक्ट पास किए। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट जो है कई तरह से इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलाती है, जिसमें कि जो है 1883 में जो एस्टेब्लिश किया गया द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यह सबसे ओल्डेस्ट एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में अभी जो है काफ़ी सारे जैसे गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है जो कि इस इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए वर्क कर रही है। एंड यहाँ पे जो है इस तरह से गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जो है रूल्स वगैरह लगाए हैं। एंड यहाँ पे जो है हमारे ड्यूटीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें भी हमारे विरासत की जो है हमारे विरासत यानी कि हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात जो है उसे इंक्लूड किया है।